ایک समय کی بات ہے کہ ایک سندر سے جنگل میں بہت سارے پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں ایک پن کی چڑیا بھی رہتی تھی جس نے اپنے گھونسلے میں 2 انڈے دیے ہوئے تھے۔ ارے پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب میرے سندر سے بچے اس گھونسلے میں کھلیں گے۔ مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار ہے۔ ایک دن جب پن کی چڑیا رات کو سو کر اٹھتی ہے تو اس کے گھونسلے میں 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے بدصورت بچے پر پڑتی ہے تو اس کی ساری خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ ارے یہ اتنا بدصورت کیوں ہے؟ اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو میری طرح سندر ہوتا۔ مجھے لگتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی پکچھی نے اپنے بچے سے میرا بچہ بدل لیا ہے۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ بدصورت بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ دور جا کر وہ درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے، ارے میرے بچے، تم یہاں پر بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے بھوجن لے آتی ہوں، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ ارے ماں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ارے تم چنتا مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایک طوطا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تم کون ہو؟ تمہاری ماں کدھر ہے؟ اب تو رات ہونے والی ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میری ماں صبح سے بھوجن لینے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا تم اب میرے ساتھ میرے گھر چلو، اب تو رات ہونے والی ہے، تم اکیلے مت بیٹھو۔ طوطا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور بہت دن تک اس کی ماں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ملتی۔ ایک دن طوطا بچے سے کہتا ہے، ارے بچے، تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اب میں نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اب تم میرے بیٹے بن کے میرے گھر میں رہو گے، میں بھی اکیلا ہوں، بڑھاپے کے سہارے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اب تم اپنی ماں کو بھول جاؤ، میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بچہ طوطے کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ طوطا اس کا نام بنٹی رکھتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب طوطا بنٹی کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بنٹی کہتا ہے، ارے دیکھو وہ چڑیا وہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، چلو جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کے کسی کام آ جائیں۔ وہ دونوں اس چڑیا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنٹی فوراً اس چڑیا کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ارے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ارے تم مجھے ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو منّے کی ماں ہوں۔ ارے ماں، آپ کو یاد ہوگا آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، طوطے انکل نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ارے میرے بچے، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، منّے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ارے ماں، منّا کہاں ہے اور تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بہت کھانسی لگ گئی تھی، منّے کو میرا ہر وقت کھانسنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا کہ میں کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بنا لوں۔ ارے بہن، تم برا مت ماننا، آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بنٹی بدصورت تھا،
اس لیے تم مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ منا تمہیں پسند تھا، اس لیے تم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج اس منّے نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ہاں طوطے میاں، مجھے آج بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بہن، تمہارا بیٹا بنٹی بہت اچھا ہے اور فرمانبردار ہے۔ میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ کاش تم نے اسے اس دن اکیلا نہ چھوڑا ہوتا تو آج تم شانتی سے اپنا جیون بتا رہی ہوتی۔ اچھا بہن، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چلو اب ہمارے ساتھ، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔ اب تو بنٹی بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اڑ پڑتے ہیں اور اپنا باقی کا جیون شانتی سے بتانے لگ جاتے ہیں۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک چمپک بن جنگل میں ایک گوری چڑیا اپنی ماں ٹنٹنی چڑیا اور اپنے پتا بنٹی کبوتر کے ساتھ رہتی تھی۔ گوری چڑیا کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ٹنٹنی چڑیا بیمار پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک دن ٹنٹنی چڑیا درخت پر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ پڑوس میں رہنے والی پنکی چڑیا کی سوتیلی ماں اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے، اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد بنٹی کبوتر دوسری شادی کر لے گا، پتہ نہیں سوتیلی ماں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ جب شام کو بنٹی کبوتر گھر لوٹتا ہے تو ٹنٹنی چڑیا اسے کہتی ہے، ارے سنیے جی، اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی مت کیجیے گا، ورنہ سوتیلی ماں میری چھوٹی سی بیٹی پر بہت لاٹھیاں چارج کرے گی۔ یہ سن کر بنٹی کبوتر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ارے ٹنٹنی چڑیا، مرے تمہارے دشمن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ارے نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹنٹنی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مر جاتی ہے۔ بوڑھی گوری چڑیا اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے، ارے اٹھو نا ماں، آنکھیں کھولو، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو؟ ارے ماں، آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر بنٹی کبوتر اسے چپ کرواتا ہے، ارے بیٹی تو رو مت، تمہاری ماں بہت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے بعد بنٹی کبوتر اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے گھر کالو کوا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم کب تک اس طرح بھابھی کے غم میں ڈوبے رہو گے؟ میری مانو تو تم دوسری شادی کر لو، گوری ابھی چھوٹی ہے، اسے اپنی ماں کی بہت ضرورت ہے۔ کالو کوا بنٹی کبوتر کو بہت سمجھاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بنٹی کبوتر دوسری شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکل سے بہت بھولی تھی لیکن واسطے سے بہت ہی نردائی تھی۔ ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر کے ساتھ گوری سے بہت ہی پیار کرتی تھی، لیکن اس کے کام پر جانے کے بعد اس پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ گوری چڑیا سے کہتی ہے، ارے او مہارانی، یہ جھاڑو اٹھا اور کام پر لگ جا اور اس کے بعد میرے پیر آ کر دبا، اگر تو نے اپنے پتا کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور بوٹی بوٹی کر کے چیل کو کھلا دوں گی۔
और तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। टोनी चिड़िया की बात सुनकर गोरी चिड़िया डर जाती है और वो काम करने लग जाती है और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन गोरी चिड़िया की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, तो गोरी चिड़िया मना कर देती है। अरे माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का काम नहीं कर सकती, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, आज आप ही घर का काम कर देना। गोरी चिड़िया की ये बात सुनकर टोनी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और उसे धक्का देकर घर से निकाल देती है। उसी समय बंटी कबूतर किसी काम से घर वापस आ रहा होता है और वो टोनी चिड़िया को ऐसा करते हुए देख लेता है। ये देखते ही वो आग बगोला हो जाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैंने तो अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही हो। अभी अभी मेरे घोंसले से निकल जाओ। ये सुनकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर से माफ़ी मांगने लग जाती है। अरे बंटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम जानते हो ना कि गोरी कितनी बदतमीज़ है, लेकिन मैं तुमसे और गोरी से कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? टोनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर उसे माफ़ नहीं करता और उसे अपने घोंसले से निकाल देता है। फिर बंटी कबूतर अपनी बेटी गोरी चिड़िया के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाता है। एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में एक कालू कौवे ने एक सुंदर से पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था। कालू कौवा बहुत ही घमंडी था। वो अपने पास किसी भी पक्षी को घोंसला बनाने नहीं देता था। पास ही दूसरे जंगल में 3 दोस्त पंखी चिड़िया, मिठू तोता और डोडो कौवा रहते थे। बारिश ना होने के कारण इस जंगल में भोजन कम होता जा रहा था। अरे, मैं तो भोजन ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, भोजन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हमें अब कोई और योजना सोचनी होगी। अरे पंखी, हम और क्या कर सकते हैं? अरे डोडो, पंखी ठीक कह रही है, मैं तो कहता हूँ किसी और जंगल में नक्ल मकानी करके जाते हैं। कुछ समय बाद जब जहाँ बारिश होगी तो भोजन भी बहुत होगा, हम वापस आ जाएंगे, हम फिर से इन घोंसलों में आ बसेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तो फिर बताओ जाना कब है? अरे डोडो, अब जब जाने का इरादा कर ही लिया है तो फिर देर कैसी, हम कल सुबह होते ही चले जाएंगे। हम दूसरे जंगल में कोई अच्छा पेड़ ढूंढकर उस पर घोंसला बना लेंगे। हाँ डोडो, पंखी की बात बिल्कुल ठीक है, हम कल ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं और कालू कौवे के घोंसले के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे, मुझे तो ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कहता हूँ इस पेड़ पर ही घोंसला बना लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर सब अपना घोंसला बनाना शुरू कर दो। वो तीनों अपना अपना भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके घोंसले ही नहीं होते, पास ही कालू कौवा बैठा होता है। अरे आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था, मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे इलाके में घोंसला बनाने की। अरे, तुमने हमारे घोंसले क्यों तोड़े? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है जो हम नहीं बना सकते। ये मेरा इलाका है, कोई भी मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ घोंसला नहीं बना सकता। अब जाओ, कहीं और जाकर घोंसला बनाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर हम भी यहीं घोंसला बना के दिखाएंगे। मैं देखता हूँ तुम कैसे हाथ लगाते हो मेरे घोंसले को। अच्छा ठीक है, तुम दोबारा घोंसले बना के देख लो, मैं ये दोबारा तोड़ दूँगा। अगली बार जब वो घोंसले बना के भोजन लेने जाते हैं
कालू कौवा फिर से उनके घोंसले तोड़ देता है। एक दिन वो तीनों रात को बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे मिट्ठू, मैं तो कहती हूँ छोड़ो इसको, हम कहीं और घोंसला बना लेते हैं। हाँ मिट्ठू, हम ऐसे रोज़ रोज़ घोंसले नहीं बना सकते। बस कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और इस घमंडी कौवे को इसके हाल पर छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, हम कल सुबह ही चले जाएंगे। अब सोते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसी रात जंगल में तेज बारिश होती है और कालू कौवे का घोंसला गिर जाता है। कालू कौवा बारिश में बैठा भीग रहा होता है। अरे अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किससे मदद मांगूं? मैंने इनके साथ अच्छा नहीं किया, अब किस मुंह से इनके पास जाऊं? तभी पंखी चिड़िया की आवाज़ आती है। अरे कालू भाई, बारिश में क्यों भीग रहे हो? इधर आओ, हमारे घोंसले में आ जाओ। कालू कौवा उड़कर उनके घोंसले में जाकर बैठ जाता है। बारिश के कारण मेरा घोंसला गिरकर टूट गया। अच्छा कोई बात नहीं, आज रात तुम हमारे घोंसले में गुजार लो। वैसे कल तो हमने चले जाना है, फिर ये तीनों घोंसले तुम्हारे हैं। अरे मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कितनी बार तुम्हारे घोंसले तोड़े और खुदा ने मेरा घोंसला गिराकर मुझे अपने किए की सज़ा दे दी। अरे मेरे भाई, तुम कहीं मत जाओ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम सबका दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है और तुम आज से हमें अपने दोस्त समझो। हम अब बहुत खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। इसके बाद वो चारों एक दूसरे के साथ शांति से अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। एक घने जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी, जो कि दूसरों के घर में सफाई का काम किया करती थी और उससे उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना पेट पालती थी। उसके परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ थी जिसका नाम गोरी चिड़िया था। वो हर वक्त बहुत बीमार रहती थी, तो इसलिए टोनी चिड़िया उसके इलाज के पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। एक समय की बात है कि टोनी चिड़िया जिस कबूतर के घर में काम किया करती थी वो उसे नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि समय पर काम ना करने के कारण वो उसे अपने घर आने से रोक देता है। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया को जल्दी घर आने की वजह से उसकी माँ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आज तुम इतने जल्दी से काम से कैसे आ गई? मुझे काम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अरे पर क्यों, तुम तो बहुत ही अच्छा काम करती थी। काम तो मैं बिल्कुल ठीक करती थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं समय पर काम पर नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। ये सुनकर गोरी चिड़िया को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचती है, अरे मेरी वजह से इसे काम से निकाल दिया गया है, यानी अगर मैं ठीक होती तो इसे काम से ना निकाला जाता। और ये सोचकर वो टोनी चिड़िया से कहती है, अरे मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि मेरी वजह से ही तुम्हें काम से निकाला गया है। अगर मैं मर जाती तो बहुत ही अच्छा होता। गोरी चिड़िया की बातें सुनकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, आप तो मेरी माँ हो, आप ऐसा कैसे कह सकती हो? आपने तो मुझे बचपन से पाला है और मेरी खिदमत की है, बल्कि मैं अब किसी और जगह नौकरी की तलाश करूँगी और आपको बिल्कुल ठीक कर दूँगी। ये कहकर टोनी चिड़िया काम तलाश करने के लिए चली जाती है।
2-3 पक्षियों के घर काम पूछने की वजह से उसे काम तो नहीं मिलता, लेकिन एक कोयल के घर उसे काम मिल जाता है। उस कोयल का नाम कोको कोयल था। उस कोयल के 2 बच्चे थे। काम मिलने की वजह से टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो सोचने लग जाती है, अरे इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी, मैं जल्दी जल्दी काम पर आया करूँगी और जल्दी जल्दी काम करके घर चली जाऊँगी। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो रोज़ाना कोयल के घर काम पर जाती है और उसका काम कर दिया करती थी। एक दिन की बात है कि गोरी चिड़िया घर में बैठी होती है। उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे दवाई के लिए अस्पताल ले जाती है। और फिर इस वजह से टोनी चिड़िया अगले दिन कोको कोयल के घर देर से पहुंचती है, तो कोको कोयल उस पर बरस पड़ती है और उससे कहती है, अरे तुम इतना लेट कैसे हो गई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी काम पर आना। तुम्हें पता है कितना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, अब इतना काम कैसे करोगी? चलो जाओ जल्दी करो, जल्दी से सारा काम ख़त्म करो। कोको कोयल की बात सुनकर टोनी चिड़िया उसे कहती है, आज मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मुझे आने में ज़्यादा देर हो गई। कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये कहकर वो अपने काम पर लग जाती है। इस तरह समय बीत जाता है। गोरी चिड़िया की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है। फिर इसी वजह से वो दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ की वफ़ात के बाद टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो सब तो अपनी माँ के लिए कर रही होती है। अगले दिन जब वो दोबारा कोको कोयल के घर जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। कोको कोयल उस पर बरस पड़ती है और उसे कहती है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना जल्दी काम पर आना, लेकिन तुम हमेशा देर कर देती हो, इसकी क्या वजह है? ये सुनकर टोनी चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, अरे मेरी माँ की तबीयत ख़राब थी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, जिसकी वजह से मुझे आने में देर हो गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सुनकर कोको कोयल को भी बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, अरे अच्छा तो ऐसी बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये सुनकर। वैसे भी आज काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, जो हो गया सो हो गया, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब तुम जाओ और काम करो। ये सुनकर टोनी चिड़िया काम पर लग जाती है। काम करते करते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है और वो रोने लगती है, अरे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, अब मैं अकेले क्या करूँगी? मेरी माँ ही थी जिसके लिए मैं सारा काम करती थी, अब मैं काम किसके लिए कर रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। टोनी चिड़िया वहाँ पर बैठे रो रही होती है कि वहाँ पर कोयल का बेटा आ जाता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर टोनी चिड़िया रोते हुए कहती है, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं क्या करूँ? ये सुनकर कोको कोयल का बेटा कहता है, अरे कोई बात नहीं, आज के बाद से तुम हमारे घर ही रहना, वैसे भी हम अकेले ही तो रहते हैं, तुम हमारे काम पर भी तो आती हो। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती, तुम्हारी माँ ऐसा नहीं चाहेगी, वैसे भी मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी को कौन अपने घर पर रखता है। कोको कोयल का बेटा और टोनी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर कोको कोयल आ जाती है
और उन दोनों की बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद कोको कोयल को बहुत ही दुख होता है और वो टोनी चिड़िया को अपने घर रहने का फैसला कर लेती है और उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। टोनी चिड़िया, तुम आज से हमारे ही घर रहना और काम करती रहना, वैसे भी तुम रोज़ाना तो काम करने आती हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कोको कोयल का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसे देर से आने की वजह से हर जगह काम से निकाल दिया जाता है और इस वजह से वो बहुत खुश थी कि आज के बाद उसे काम से कोई नहीं निकालेगा। अरे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता था और कोई मुझे काम से निकाल देता था। अरे क्योंकि तुम हर जगह देर से पहुंचती थी इसलिए काम से निकाल देते थे, पर मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी। इसके बाद टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी जगह पर काम मिल गया था और वो पूरी दिलचस्पी से काम करने